now. Namaskara and good evening, everybody. A very warm welcome to this today's Spiral of Wisdom Satsang. But before we start off, may I request Swati to say the school prayer. Sure. Good evening, everyone. O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Thank you. Thank you, Swati. So before I start off, may I request everybody to sit straight with their back, neck, and head aligned. And let us just send a prayer to our higher self, to our inner Guru. Today is Guruvara. So let us send that prayer to the higher Guru. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. Let our higher selves guide us so we get the best out of today's satsang. We have a very nice, a sweet speaker today with us. And also, sir, to And add on to it, today is Persian New Year. So, today is Persian New Year. And Sajini ma'am told me special for Zoroastrians. Yes, to remember Ma. Oh, very nice. So I Very wish nice. Well, you could read that. I will do. I will. I'll just say a couple of things. That this Spiral of Wisdom Satsang was started by Ma Manize, who is the founder of the School of Ancient Wisdom, along with Mr. Ram Menon. And she was of Zoroastrian. She was a Zoroastrian-bodied person. Well, we are all souls, but we have our identities on earth as well. She was a Zoroastrian, the Tata group, and she was born in. I think she was born in Mumbai, right, Swati? You got the her biodata. Yes. So yes, she's born in yes. Mumbai. She lived in Singapore. Incidentally, she's Ratan Tata's auntie, for those who don't know. And she was a great soul, a very clairvoyant person, very angelic. And when she came to this spot, the School of Ancient Wisdom, she immediately recognized within 10 minutes. She looked for places all around the world, but she immediately recognized this place as a holy place, and that is how the School of Ancient Wisdom site was chosen. She is of Zoroastrian birth, but somehow she was a theosophist, because she was the head of the Theosophical Society at Singapore. And I remember when she passed on, she wanted to be cremated rather than left on the Wailing Towers, that is right next door near Hebbal. But she's a very illustrious. She comes from a very illustrious family, and we all know very well how the Parsi community have contributed. They came from Persia initially, and when they were ousted from there, they came and found a very stable home in Bharat. And that is how Bharat has a very deep and significant connection with the Persian community. As small as they have contributed far beyond their size to the well-being and the growth of our nation. So today is the Persian New Year, so let us fondly remember her also in that context. But it's very nice to also remember the heritage from which she came and the wonderful development it brought for Bharat. So let us just, close our eyes and express our gratitude quietly within, just for a moment. To Ma Manize and her community as well. And of course, we belong to her community as well. So I would like to introduce today's speaker, Maithili Raghava Acharya ji. Maithili Raghava Acharya, born and raised in a traditional Brahmin Iyengar family, was nurtured with values rooted in education and discipline. After her marriage and the blessings of her children, she developed a strong zeal to practice yoga, which became an integral part of her life. Her journey of learning and growth became continued through the years
reflecting the essence of her family's values and her pursuit of inner harmony. At the age of 77, Maitri Ji began exploring alpha meditation, a practice that has brought her numerous fulfilling experiences. Not only has it enriched her life, but she also uses her newfound knowledge to help others, offering solutions to their challenges. Still open to learning, her journey of self-discovery and spiritual growth continues, proving that it's never too late to begin a transformative path, which is so very true. Let us not get taken in by the external appearance or the age of our body, because we don't know how many lives our soul has been through as a soul. And Maithili ji, the moment I saw her and the moment I heard her, I can say she's a very sweet-natured person. She has gone through many self-explorative and spiritual growth methods, but she's especially fond of this particular satsang topic today, which is alpha meditation. So over to Maithili ji. Maithili ji. Thank you. Thank you, sir. She will speak in Hindi largely. So it's quite easy. I'm sure you'll all understand. I know she's an Iyengar, but she's been in Bombay and Delhi for a very long time. And she's actually now living in Bombay. So she will speak in Hindi with a South Indian accent. So please be alert. हिंदी तो समझ लेंगे, तो हर लोग कर्नाटका में तो बहुत लोग समझते हैं, ऐसी बात नहीं है. जरूर जरूर. अच्छा, शुरू कर ले, फिर स्टार्ट कर ले. हाँ जी. पहले अल्फा क्या है समझना है. ये हमारे दिमाग का 4 पैटर्न होते हैं, मतलब ब्रेन वेव्स बोलते हैं. लेफ्ट ब्रेन हमेशा एक्टिव रहता है. हम चलते फिरते जो काम बाहरी वर्ल्ड के साथ संबंध बना के रखता है, वो सारा बीटा लेवल है. वो पर साइकिल पर 14 प्लस पर सेकेंड है. वो पर साइकिल्स पर सेकेंड है. फिर नेक्स्ट वेव अल्फा लेवल है. अल्फा लेवल में राइट ब्रेन एक्टिवेट होता है. फिर वो इनर वर्ल्ड में कनेक्ट होता है, मतलब अवेयरनेस, फिर सोचने समझने की, सही काम करने का क्लियर माइंड, वो सारा अंदर से होता है. ये संबंध हम तकरीबन सोच नहीं सकते. हम राइट ब्रेन यूज नहीं करते, बहुत कम लोग करते हैं. लेफ्ट ब्रेन में ही लगा रहता है, काम करना, वो करना, भागना, दौड़ना, बाहर दुनिया के साथ समझना, तर्क करना, जो विवाद करना, कुछ भी, सब कुछ लेफ्ट ब्रेन काम करता है. फिर हमें तो वो नहीं चाहिए. हमें इसके बाद थर्ड लेवल में आता है थीटा लेवल. थीटा लेवल तो 4 to 7 पर, अल्फा लेवल में जो 7 to 14 साइकिल्स पर सेकेंड है. वो ब्रेन का वेव्स ये कम रहता है. पहले बीटा लेवल से ये अल्फा लेवल कम है. इसके बाद थीटा लेवल है, वो 4 to 7 पर साइकिल्स है, फिर पर सेकेंड है. ये भी हमें नहीं चाहिए. इसके बाद लास्ट डेल्टा लेवल है, वो 0 to 4, वो कोमा लेवल में हो जाता है. हमें वो भी नहीं चाहिए. अल्फा लेवल इतना स्ट्रांग है. आपको वो लेवल क्या होता है, आपको नींद आ गई है पर सोए नहीं, ऐसे बहुत जबरदस्ती नींद आ गई है, फिर आप सोए नहीं है, अभी तक नहीं सोए, वो अल्फा लेवल है. सुबह नींद खुल गई है, फिर आंखें नहीं खुली, अभी आवाजें सुनाई देती है, सब कुछ होता है, फिर आंखें नहीं खुली, वो अल्फा लेवल है. क्योंकि उस टाइम में बीटा लेवल, वो ब्रेन जो मन शांत रहता है, ज्यादा थॉट्स वगैरह नहीं होता, उस टाइम में अल्फा लेवल बहुत हायर लेवल में रहता है. उस टाइम में आप जो कुछ सोचते हो, जो कुछ बोलते हो, जो कुछ मांगते हो, वो अल्फा लेवल सबकॉन्शियस माइंड प्रपंच के साथ कनेक्ट कर देता है. वो आपके सामने एक सेकेंड हो, ये कुछ नहीं, आप मांगने की तरीका है बस, वो सामने खड़ा कर देता है. इसलिए सबकॉन्शियस माइंड में आपको जो कुछ रिकॉर्ड करना है, विजुअलाइज करके रिकॉर्ड करोगे या बोल के रिकॉर्ड करोगे, कुछ भी आपको बहुत जरूरी ये चाहिए मेरे लिए, ऐसे सोच के करेगा तो अल्फा लेवल में ही करना है. अल्फा लेवल में करोगे, उसमें याद रखना कभी नेगेटिविटी नहीं लाना, नेगेटिव नहीं बोलने का. ऐसे ही है ना, वो बोलते हैं मेरे कपड़े में ये गिर जाएगा, वो तो जरूर गिरेगा. नहीं, कपड़े में नहीं गिरना चाहिए बोलेंगे, भी गिरेगा.
क्योंकि सबकॉन्शियस ऐसे ही अर्थ ले लेता है। फिर मैं हमेशा लेट नहीं जाना चाहता, बोले हमेशा लेट ही जाओगे, ये भी बात है। ऐसे नहीं बोलना। प्रपंच को समझने के लिए आपको सीधी सादी भाषा में ऐसे ही मन में सोचना चाहिए। वो भाषा नहीं समझती, कोई भी भाषा नहीं उसको समझ आता। अपने वो अपना भावना, अपना इमोशन, अपना वाइब्रेशन, अपना फीलिंग्स, यही समझता है प्रपंच। फिर इसके लिए आप वही अल्फा लेवल में जानना जरूरी है। फिर अल्फा में और क्या होता है, आपके लिए स्ट्रेस कम हो जाता है। स्ट्रेस वाले जरूर मेडिटेशन करना चाहिए, अल्फा मेडिटेशन। स्ट्रेस कम हो जाता है, हेल्थ अच्छा रहता है, शांति मिलता है, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन मिलता है। आप सबकॉन्शियस माइंड में कुछ भी पूछ सकते हो, ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन क्या है। वो उसका रूप फिगर वगैरह कुछ नहीं है, वो क्या बोलता है, वो आपको किसी बुक पढ़ते हो तो पढ़ने में से मिल जाएगा एडवाइस, या किसी लोग सड़क में बात करते हुए जाएंगे, उनकी बातों में से होगा एडवाइस। ऐसे ऐसे ही देता है वो, सामने आके नहीं दे सकता, आपको इंट्यूशन से ही करता है वो। ये अल्फा लेवल तो बहुत कुछ काम कर सकता है ये। आपको यही बोलते हैं ना हम, अधिक शक्ति बनता है, हमें मिलता है, स्ट्रेस निकल जाता है, सब में सक्सेस पा सकते हो। बहुत अवेयरनेस के साथ काम कर सकते हैं, हमारा अपना लक्ष्य को जल्दी पा सकते हैं, इजी आप पा सकते हैं, इजी सी। फिर अल्फा लेवल में दूसरों के मन के साथ बात कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसे कोई बात होती है, देखो सामने बताने में अच्छा नहीं लगता, कोई सेंसिटिव हो सकता है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है, कोई सुनता नहीं है, तो अल्फा लेवल में पहले आप जाके उनको याद करके उनके मन में बात करो। आपको जो चाहिए, आप जैसे चाहते हो वैसे मन में बात करो, उनका सबकॉन्शियस माइंड सुनता है, उनमें चेंजेस आ जाता है, ये पक्का है। मैंने कई लोगों का मन बदला है, उनका चेंजेस लाई हूँ। फिर मैं कभी पूछती नहीं हूँ एक अब क्या हो रहा है, ये मन में बदलाव ला सकते हो। अब बच्चे, छोटे बच्चे पढ़ते नहीं है, सुनते नहीं है, फिर बच्चों को उनके मन में जाओ, अल्फा लेवल में जाओ, उनके मन के साथ आप बात करो, तुम इतने अच्छे हो, अच्छे नंबर लेते हो, क्लास में फर्स्ट आते हो, टीचर्स प्यार करते हैं, बच्चे प्यार करते हैं, कुछ भी बोल लो, बच्चे में बहुत चेंजेस आती है। अब मेरी फ्रेंड की बच्चे दोनों मेरे क्लास में आके, छोटे शैतान थे पहले, पता नहीं फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड पढ़ता था, अपनी लड़की थोड़ी बड़ी थी, अब तो बहुत बड़ी लड़की कॉलेज भी चली गई है, लड़का भी यूएस में मेरे को मिलने भी आए थे। वो इतना अच्छा हो गया पढ़ने में, बच्चे दोनों बहुत, मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि वो रोज करती थी मेडिटेशन, मैं मन में बात करती थी, क्या करती थी, अच्छा पढ़ना है, तुम लोग आगे तरक्की करना है, ऐसे करके बहुत बातें में बच्चों को बहुत किया। फिर सामने बोलने से सुनता नहीं है, शैतान नंबर 1 है वो। फिर वो बहुत अच्छा है। ऐसे कई बातें, कई कोई भी मैटर को लेके आप मन में बात करो। अपने फ्रेंड के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, फिर चलो ये गलती हो गई है, हम पहले जैसे रहेंगे, माफ कर दो, ऐसे अपने ऊपर गलती होता है, ऐसा करो, वो गलती करे भी माफ कर दो, पहले जैसे रहेंगे, प्यार से रहेंगे, मन में कुछ भी बोलो, वो काम हो जाता है पक्का। अनुभव करके फिर मेरे को रिजल्ट बताने के लिए मैं यही बहुत पसंद करती हूँ। इसके बाद आप मन के बदलने के बाद कलर्स डाल सकते हो। कॉस्मिक मतलब प्रपंच में से आपके ऊपर व्हाइट कलर बरसता हुआ इमेजिन करना है, ऐसे वर्षा की तरह आपके ऊपर आ रहा है, ऊपर चक्रा सहस्रार से, ऐसे कि पूरे बॉडी में, हर एक सेल में ऐसे इमेजिन करना है। सेकंड, ग्रीन कलर बरसता हुआ इमेजिन करना है। व्हाइट कलर आपको नेगेटिविटी हटाता है, घर में शांति बना के रखता है। ग्रीन कलर आपकी बीमारी हटा देता है, क्योंकि बॉडी के हर एक सेलों में जाके वो एक्टिवेट होता है, जहां तकलीफ होता है उसको ठीक कर देता है। इसके बाद पिंक कलर बरसता हुआ इमेजिन करना है, अपने ऊपर बरसाना है तो प्रपंच में से सीधा अपने ऊपर बरसाओ, बरसता हुआ इमेजिन करो। वो लव एंड अफेक्शन, प्यार बहुत मिलता है, आप भी प्यार करेंगे, जिन लोगों के ऊपर रहता है वो भी बहुत प्यार करेंगे। इसके बाद वायलेट कलर बरसता हुआ इमेजिन करना है। वायलेट कलर आपको स्पिरिचुअल की ओर लेके जाता है। फिर लास्ट में गोल्डन कलर बरसता हुआ इमेजिन करना है, वो धन दौलत, कई ऐश्वर्य, पूरा घर भर जाता है। ये पहले अपने ऊपर प्रबंध में से आता हुआ इमेजिन करना है।
फिर अपने घर में डालते हुए भी प्रपंच में, घर में डालो या ऑफिस में डाल लो, ये कलर्स 5 कलर जरूर डालना। फिर बच्चों के ऊपर डालना है, फिर किसी फ्रेंड फैमिली मेंबर्स के ऊपर डालना है, फ्रेंड्स के ऊपर डालना है, तो अपने आईब्रो के बीच में से डालना है। ऐसे आप इमेजिन करो, आईब्रो के बीच में से व्हाइट कलर उनके सामने, वो बातें करो कुछ करो, आप कलर पंचाओ, फिर वो चेंजेस बहुत आता है उसमें। व्हाइट कलर बरसने से उसको शांति भी मिलती है। फिर वही है, यही कलर बरसना है। फिर दूसरों को बरसाना है तो शहर को करोगे या अपने देश को करोगे या पृथ्वी पे करोगे, पृथ्वी को तो ग्लोब के रूप में सामने देखते हुए कलर डालना है, आईब्रो के बीच में से कलर आपको पास करना है। उसमें हर ये इसका इफेक्ट बहुत अच्छा होता है। किसी से भी बात करने जा रहे हो तो पहले पिंक कलर बरसाओ, ये भी बहुत फायदा देता है। ये धन दौलत का था, किसी के ऊपर भी बचाओ, गली में कोई जा रहा है तो गरीब लग रहा है ऐसे करके, फिर ये गोल्डन कलर बरसता हुआ आप चले जाओ, कोई उसका ओपन माइंडेड होगा तो वो ग्रहण कर लेगा वो एनर्जी। ये सारा एनर्जी है, हर एक चीज एनर्जी बनता है हमारे। इसके बाद कलश डालने के बाद आपको क्या करना है, ये नहीं है आप किसी को भी देखते हो पहले पॉजिटिव से रहना है, लव एंड अफेक्शन से बात करना है, किसी को हेल्प करना है, कुछ भी कर लो। फिर इसके बाद मन में बात करने के बाद आपको देखो, अल्फा तो और ज्यादा करता है, ये अपना थॉट्स वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने काम को भी कंट्रोल कर सकते हैं अल्फा लेवल में। फिर फ्रेंड्स हो, फैमिली मेंबर्स को, उनके रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं, अच्छा बढ़िया बढ़िया तरह से मेंटेन कर सकते हैं। फिर टायर्ड होता है तो आप फ्रेश हो सकते हैं अल्फा लेवल में, आप मांग के कर सकते हो, रात को अच्छी नींद आएगी, ये भी बात है। फिर आपको अलार्म के बिना आप उठ सकते हो, रात को सोने से पहले मैं 5 बजे उठना है बोल के सो जाओ, सही 5 बजे उठोगे, बायोलॉजिकल क्लॉक बॉडी में ही है, आराम से उठ जाओगे। आपको या दूसरों को कोई तकलीफ हो या बीमारी हो, उसको भी आप हटा सकते हो अल्फा लेवल में जाके। इसके अल्फा लेवल में इतना फायदा है। तो फिर इसके बाद कैसे जानना है ये भी बता सकते हैं। आपके पास आपका लक्ष्य को पाना है तो कोई भी 10 लक्ष्य ले लो। कोई जॉब मिलना है आपको, जॉब नहीं तो जॉब जॉब के लिए आप ढूंढ रहे, अच्छा बच्चों की और तरक्की के लिए और इंक्रीमेंट आना है, प्रमोशन मिलना है, उसके लिए या कोई भी लक्ष्य को ले सकते हो। कम से कम 8-10 लक्ष्य ले लो, लिख लो, एक एक लक्ष्य को एक एक स्टेप बाय स्टेप इमेजिन करना है। इमेजिन करना है, प्रेजेंट टेंस में ही करना है, पॉजिटिव करना है। वो जैसे इंटरव्यू पे जा रही हूँ, आपको इंटरव्यू आ रहा है, इंटरव्यू पे जा रहे हैं, फिर पैनल में 3-4 लोग बैठे हुए हैं, फिर वो क्वेश्चंस पूछते हैं, आप अच्छी तरह जवाब देते हो, आप सेलेक्ट हो जाते हो, वो खुशी भावना ले आओ पहले। वो भावना से प्रपंच को इमिडिएटली वो भावना ही समझता है, पहुंच जाता है, आपका ऑर्डर हाथ में अगले दिन ही मिल जाएगा या उसी टाइम भी मिल सकता है। ये उदाहरण है जॉब के लिए या बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की शादी करना है, स्टेप बाय स्टेप देखो, देख रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, फिर बात हो रही है, फिर बस फिक्स हो जाता है शादी। ऐसे कह के वो फीलिंग लाना, शादी हो रहा है तो कितना फीलिंग हो गया वो पहले ही लाना पड़ेगा। खुशियां हो कुछ भी हो, पहले लाने से प्रबंध इमिडिएटली आपको समझ के कर देता है। फिर पैसा चाहिए तो फिर आप बोलो मेरे को 50 लाख चाहिए, कुछ भी बोलो, ये नहीं है 5 रुपया मांगने में कुछ वो नहीं, ज्यादा ही मांगना है, करोड़ों की तरफ ज्यादा मांगो। फिर प्रबंध क्या सोचेगा, आपका क्या खर्चा कर रहे हो, चलो 50,000 मिल गया, आपने पूरा 50,000 खर्च लिया, तो प्रबंध सोचेगा चलो इसको तो पैसा दे सकते हैं, अच्छे काम में लगाता है, दान दून करता है, कोई हॉस्पिटल को करता है, कोई मतलब ओल्ड एज होम या किसी को करता है, तो वो और भी देगा, डबल देगा, उससे भी डबल। फिर आप खर्चते जाओगे ना, उसको समझ जाता है इसके पास पैसा वेस्ट नहीं करता है, अच्छा काम में लगाता है। ऐसे आपको पैसा कमाने के लिए कोई तकलीफ नहीं करना, अल्फा लेवल में जाके आपको पर्पस अच्छा होना चाहिए, जो काम के लिए पैसा मांग रहे हो ना उसका पर अच्छा काम के लिए मांगोगे तो वो जरूर आपको मिल जाएगा, एक के दुगना मिल जाएगा। दूसरी बात ये बोलते हैं ना, वो जो कुछ दे रहे हो वो दुगना तिगुना 4 गुना आ जाता है। अच्छी बात है, पॉजिटिव मतलब लव एंड अफेक्शन देते हो, वो
कई गुना आपको वापस मिलेगा। ऐसी नेगेटिविटी देते हो, गुस्सा मतलब नफरत, इरिटेशन, कोई ऐसी चीजें देखते हो वो भी 100 गुना आता है। ये तो 10 गुना आएगा, वो तो 100 गुना वापस आ जाएगा। फिर इसलिए आप समझ लो क्या देना है क्या नहीं देना है। नेगेटिविटी के बिना कोई नहीं है, नेगेटिविटी तो भरा रहता है। फिर उसके ऊपर पॉजिटिव ला के डाल के उसको नीचे दबा देना है मन में। फिर वो एक टाइम में वो खत्म हो जाएगा, नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं रहेगा। आप हमेशा पॉजिटिव रहोगे तो आपका सारा काम में सक्सेस पा सकते हो, हर काम में जीत पाएंगे। फिर ये मेरे को बहुत पसंद आया, इसलिए हर काम में मैंने क्या किया, ये मेरी फ्रेंड का एक कॉलेज में उनकी सागा लेक्चरर थी, वो एचओडी थी, बहुत परेशान करती थी। मेरे पास आके रोज रोया करती थी, ऐसे तंग करते हैं ऐसे तंग करते हैं। मैं बोला चलो मेडिटेशन करके देख लेते हैं। फिर मैंने मैंने उसका उसके मन के साथ बात करके उसको चेंजेस लाई। मेरे ख्याल से मैंने 2 महीने भी किया नहीं होगा, उसका एकदम वो चेंज हो गई। अब तक प्यार में है वो उसके साथ। फिर मैं मेरा कुछ नहीं है इसके बीच में, वो दोनों प्यार में रहे तो फिर मेरे लिए बुरा नहीं है। लड़ाई झगड़ा करे तो मेरे को दुख होता है। इसके बाद दूसरी बात है, मेरी मेड थी, उसका हस्बैंड का एक दोस्त था, वो अमीर आदमी था उस टाइम में। उसका बेटे का एक्सीडेंट हो गया। फिर उसने क्या किया, इसने पूछे बिना नहीं, इसकी वाइफ की कोई जायदाद, कोई मतलब कोई ग्राउंड वगैरह होगा, बेचा होगा, 10 लाख रुपए उसके पास था। उसने वो उसके आदमी ने क्या किया, वो पैसे उठा के उसको दोस्त को दे दिया। तो उसका लड़के का एक्सीडेंट है, इमिडिएटली पैसा चाहिए हॉस्पिटल के लिए। इसने पूछा भी नहीं है, ऐसे दे दिया। फ्रेंड दे करके, कोई लिखा नहीं, कोई पेपर नहीं लिया, साइन नहीं लिया, कुछ नहीं किया, ऐसे दे दिया। अच्छा, वो तो बहुत अच्छा फ्रेंडशिप था दोनों में, इसलिए विश्वास करके दे दिया। फिर वो तो लड़का ठीक होके घर भी आ गया। उनकी रिलेटिव्स ने क्या बोला, कोई लिखित नहीं है, साइन नहीं है, कुछ नहीं है, वो कैसे मांगेगा, आप नहीं दो। उनके रिलेटिव्स ने बोला वो वो नहीं नहीं देना, देख लेंगे। फिर ऐसे करके बोलने से मेरे पास आके बहुत रो रही थी। फिर मैंने उसको बोला चलो इसके भी मैं बता देती हूँ, तुम भी बैठ के मेडिटेशन सीखो करो। फिर उसने बोला क्या करना है करके। फिर मैंने उसको बोला अल्फा लेवल में कैसे जाना है, अल्फा लेवल में जाओ पहले, फिर बोलो। वो आदमी तो बहुत अच्छा है, एक दिन घर में मिलने आता है, सूटकेस भर के पैसे लेके आता हुआ, इमेजिन करो। वो आके देता है तो कितना खुशी मिलता है, वो लाओ उसका। फिर प्रबंध, सच में आप मानेंगे नहीं, 15 दिन में वो 10 लाख से 2 लाख रुपया लेके आया, दे के चला गया। उसके बच्चे वरा मजाक उड़ा रहे थे, ऐसे बैठने से थोड़ी मिलेगा, ये क्या बात कर रही हो, ये बेकार है, बकवास है, ऐसे करके बहुत बोल रहे थे। मेरे पास रोज बोला करती थी। फिर मैंने ऐसे नहीं है, ये बोलो तो हो जाए। फिर उसने बोला 6 महीने तक सारा दे दूंगा, वो बात अलग है। अच्छा, फिर ऐसे छोटी छोटी बातों में उनकी मन में चेंजेस आ सकते हैं। ऐसे मैंने जो को जिसको ज्यादा हेल्प चाहिए, मैं जरूर मेडिटेशन किया है, उनके लिए भी किया है, अपने लिए भी किया। अपने लिए ज्यादा मैं बिल्कुल नहीं करती, बच्चों के लिए करती हूँ, अपने फ्रेंड्स के लिए करती हूँ, अपार्टमेंट के लिए करती हूँ, पूरा भूमि के लिए करती हूँ। 1 minute, சாரி, நான் கிளாஸ், நான் மீட்டிங்ல இருக்கேன்மா, அப்புறம் பேசுறேன்। ऐसे छोटा छोटा काम भी ये मन को चेंजेस ला सकता है। फिर आपको जो चाहिए तो वो विजुअलाइज करके ले सकते हो। विजुअलाइज करो, वही बोला ना, स्टेप बाय स्टेप देखना है, उसमें खुशी लाना है। इसके लिए एक और छोटा उदाहरण है, छोटे बच्चे खेलते हुए देखो, किचन सेट रख के खेलेंगे, फैमिली मतलब माँ बाप का, वो डैडी ऑफिस जाएगा, माँ खाना वाना बना के उनको भेजेगी ना, झूठी मूठी सब छोटी मोटी, फिर उनकी खुशियां देखो, उनकी सच में उनकी भावना बहुत सच्चाई रहेगा। प्लेट डालेगी, अच्छा काली राती रोटी ले लो, चपाती ले लो, दाल ले लो, चावल ले लो करके, बता ना उनके मन में कितनी खुशियां होती है। वो खुशी हमें हर एक चीज में लाना है, पहले ही लाना है। वो भावना रहेगा ना, आपको तो कई गलती नहीं हो सकती। आपका जो मांगते हो, जो सोचते हो, वो जरूर अल्फा माइंड, अल्फा पावर में, सबकॉन्शियस माइंड प्रपंच को भेज देता है, प्रपंच आपके सामने खड़ा कर देता है। इसके बाद आपको अल्फा के बारे में और क्या सुनना है, आपको हमेशा अल्फा की मदद ले लो, हेल्प ले सकते हो। जैसे कार पार्किंग के लिए जगह नहीं मिल रहा, तो अब मन में सोच लो, मेरे को मतलब बिल्कुल क्लोज मार्केट के पास है, ये बिल्कुल आगे
जहां आपको चाहिए वो उनमें इमेजिन करो। फिर देखा तो उधर गाड़ी खड़ी भी होगी ना, उसी टाइम में वो वेकेट हो जाएगी, आप उधर कर सकते हो, या तो पहले ही खाली रहेगी। क्योंकि अल्फा में जो मांगते हैं वो तैयार करता है, प्रबंध पूरा वातावरण को ही बदल देता है, बहुत बढ़िया काम करता है वो। ये वीडियो पिक्चर जैसा ही विजुअलाइज करना है, फिर रोज उसको एक बार देखना है, उसको एनर्जाइज करना है वो, क्योंकि देखने से रोज उसको याद कराने के बाद कोई कोई जल्दी हो जाता है, कोई कोई 2 दिन 3 दिन लग सकता है, इसलिए रोज देख के उसको करना है। फिर ये भी बोलते हैं उसको, आपको आपका लक्ष्य पूरा करने के बाद प्रबंध समझता है तो उसके प्रबंध के पास ही छोड़ दो, आप सोचो नहीं पर ये बड़ा काम है, वो करने में देर लगेगा, वो कैसे करेगा, ये सोचने का काम आपका नहीं है। अच्छा, जो जिसको नौकरी नहीं मिल रहा था वो सोचो अच्छी कंपनी में जॉब करता हुआ इमेजिन करना चाहिए। बच्चों को पढ़ाई देखो, मैं बिल्कुल अच्छा नंबर लेता हूँ, बहुत अच्छा पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा एग्जाम लिखता हूँ, ऐसे करके सोचना है। मैं कैसे कर सकता हूँ करके सोचोगे तो बस नीचे आ जाओगे, ये फेल हो जाओगे, फिर नहीं करना। ऐसे कोई बिजनेसमैन होगा तो हमेशा यही सोचना है उसका लाभ, वो उसका बिजनेस कैसे ऊपर की ओर जा रही है उसी को देखना चाहिए। ये कैसे होगा, ये क्या होगा, ये आपका सोचने का काम नहीं है, वो भी प्रबंधी देख लेता है। आप जब इमेजिन कर रहे हो तो उसी में आप जरूर उसमें होना चाहिए पार्ट में। फिर एक आदमी ने क्या किया, ये लॉस एंजल्स में हुआ था, ये एक लड़का था और जब वो सर्विस करता था उसको ना मकान लॉस एंजल्स में जाने का प्रोग्राम था, वो और कहीं कैलिफोर्निया रहता था, क्या रहता था। फिर फोटो मकान बिल्डिंग का कई फोटो जो आते हैं वो काट के अपना एक ग्राफ बुक की तरह उसमें चिपा पूरा चिपका के रखता था हर चीज। फिर देखा, फिर बहुत दिन में बात भूल गया था वो मकान कैसा होना चाहिए, वो गली कैसा है, ऐसे जैसे गली में लाइट लैंप्स वगैरह होते हैं। फिर ऐसे बहुत सारा फोटो के साथ उसने एक नोटबुक में पूरा चिपका के रखा था। फिर बाद में भूल ही गया, कुछ नहीं है। वो जब उसका ट्रांसफर होके वापस आ जाता है, फिर सारा सामान के साथ पहुंच जाता है, वो तक लॉस एंजल्स ही पहुंचता है, उसको याद नहीं है, बिल्कुल जो किया है वो याद नहीं है। फिर देखता था ये जगह तो मैंने पहले देखा हुआ है, देखा हुआ उसका मन में आ रहा है। देखा तो फिर वो घर भी वैसा ही है जैसे इसने किया था, वो घर भी वैसा ही मिला उसको। फिर एक दिन उसका बेटा, इतने में शादी हो गया, बड़ा भी हो गया, उसका बेटा पूछ रहा ये बॉक्सेस क्या क्या है, ये बॉक्सेस खोल के देखता है ना, उसी में उसका वो बुक मिलता है, नोटबुक जो उसने मकान का फोटो निकाल के काट के रखा था, चिपका था। वो तब भी उसको याद आता है, जो उसने मांगा था वो ही उसको मिला है। ये तो दूसरी बात है। एक आदमी सोचता है पूर्ण चंद्रमा को, शिप में ट्रैवल करते हुए पूर्ण चंद्र को देखना है, पूरा चंद्रमा को, पौर्णिमा को देखना है करके, फिर ये कैसे हो सकता है, ये तो होना मुश्किल है। फिर उसको ये नहीं सोचता मैं मुझे देखना है, मुझे बहुत पसंद है, आपकी इच्छा ना सबकॉन्शियस माइंड में वो होना चाहिए। फिर उस एक दिन क्या हो गया, ऑफिस की नौकरी की तरह वो उसकी कोई काम से कोई विदेश जाना पड़ रहा, वो शिप में जा रहा था, देखा था पूर्ण, ये तो मैंने पहले ही देखा हुआ है, उसको भी ऐसे ही लगा था फीलिंग, क्योंकि वो आप जो दृश्य देख रहे हो उसको सामने लाना, उसको आपको आपके करीब वो पहुंचाना उसका काम है। वो उसको देरी भी नहीं लगती, दूरी भी नहीं लगती, कितना दूर में भी वो कर सकते हो वो तो, वो फिर इतना जल्दी हो सके उतना जल्दी भी वो करे। करेक्ट मेथड में आपको जानना है, हमेशा पॉजिटिव में रहो, प्रेजेंट टेंस में रहो, क्योंकि पहले वाला भी बेकार है, पास्ट भी बिल्कुल बेकार है, उसको सोच सोच के अपना प्रेजेंटेंस खो देते हो, फ्यूचर भी आपको पता नहीं है। फ्यूचर में भी देखिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप प्रेजेंटेंस में जियो, आपको प्रेजेंट में ही रहना है, फिर उसमें रहने से आपकी खुशी भी मिलती है। आप ये टाइम निकालो, आपका टाइम कैसा हो रहा है वो देख के उसमें खुशी पाना है, उसी में रहने से ज्यादा अच्छा है। क्योंकि पास्ट में रहोगे तो आपको कोई अच्छा काम याद नहीं आएगा, बुरे काम ही आएगा, किसी ने डांटा होगा, किसी ने मारा होगा, कुछ भी होगा, उसी को सोच सोच के उसको दुखी बुटाओगे, अच्छे काम को कभी नहीं सोच के खुश नहीं होगे। फिर वो क्या होता है, जैसे कोई चोट लग जाती है ना, उसको कुरचने की बराबर हो जाता है। पुराने गांव को क्यों ऐसे करना है, इसलिए पास्ट टेंस में
बिल्कुल नहीं सोचना। पास्ट टेंस में कोई भी बात हुआ हो तो नहीं सोचना। पास्ट टेंस में क्या करना है, अच्छी बातें आपको हैप्पी मतलब खुशी देने वाली बातें हो तो उसको याद याद कर सकते हो। वो इस टाइम में अभी भी देके याद कर सकते हो, उसी में कोई नुकसान नहीं है। उसी वो खुशी आपको शक्ति देता है, बहुत अच्छा आपको अच्छा लगता है। फिर नेगेटिविटी नहीं सोचना, बुरे कामों को मत सोचना, फ्यूचर के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर ऐसा है, आज जो आपका थॉट्स है वही कल बनेगा। आज थॉट्स का बहुत पावर ज्यादा है। पॉजिटिविटी नेगेटिविटी, पॉजिटिव में रहने का क्या मतलब है, तो फिर आपको पता है हर चीज अच्छा लगेगा। वो फिर नेगेटिविटी तो आपको दुखी देता है, हर काम में नेगेटिव है, मतलब वही है। जलना जलना मतलब इरिटेशन होना, हैप्पी नहीं रहना, किसी को दुख देना, मतलब कंप्लेन करना, कंपैरिजन करना, ये सारा नेगेटिविटी में आ जाता है। इसलिए ये चीज से दूर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि दूसरी बात, ये चीजें आपकी शक्ति को कम कर देता है। पॉजिटिविटी आपकी शक्ति को बढ़ता है। मेडिटेशन आपको एनर्जी देता है, एनर्जी गेन करते हो। फिर आंखें बंद करने से एनर्जी सेव होता है, मौन रहने से ये एनर्जी बढ़ता है। इसलिए मेडिटेशन बहुत अच्छा है, अच्छी चीज है आपको शांत रहने के लिए भी सही है, आपको क्लियर रहने के लिए, फिर आपको अच्छे हेल्थ के साथ रहने के लिए कम से कम हाफ एन आवर नहीं होता, आपको 10 मिनट आप बैठो। अल्फा लेवल में बैठने के लिए टाइम सुबह मॉर्निंग सो के उठ के आप बैठ सकते हो, हाथ मुंह धो के बैठ जाओ। आपको जितना देर बैठ सकते हो, 20 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट बैठो, आधा घंटा बैठो। मैं तो आधा घंटा रोज बैठती हूँ, मतलब 4 से 4:30, 4:25, 30 तक मैं बैठती हूँ। फिर ये आधा घंटा भी बैठने से आपका मन को जो भी उसमें करो, विजुअलाइज कर सकते हो, फ्रेंड के साथ बात कर सकते हो, कुछ भी करो अल्फा लेवल में, वो आपको फायदा मिलता है। रोज रखना है, जहां हम बैठ के मेडिटेशन करते हैं वो वातावरण साफ रखना है, एक ही जगह में बैठना है, एक ही टाइम में बैठना है, ये भी सोच लो। अब अर्ली मॉर्निंग बहुत अच्छा टाइम है। फिर सेकंड, रात को सोने से पहले आधा घंटा या 15 मिनट आपको जितना टाइम मिलता है उसमें थोड़ी देर अल्फा लेवल में बैठ के फिर आप सोने चले जाओ। या तो तीसरा, खाना खाने के बाद, लंच के बाद 5 मिनट 10 मिनट आप बैठ सकते हो, उसमें अफर्मेशन कर सकते हो अल्फा लेवल में। बोलो आपको जो कुछ बोलना है, मैं अच्छा हूँ, मैं मेरा हेल्थ बहुत अच्छी है, वो जो पॉजिटिव में आपको जो बोलना है, अफर्मेशन बोलना है, मैं ये मेरे से ये होगा, मैं ये कर सकती हूँ, कुछ भी आप बोलो, अफर्मेशन कर सकते हो। 5-10 मिनट के लिए बोल सकते हो, 5 मिनट भी बोलो सही है, फिर ज्यादा नहीं। ये तीनों टाइम बहुत अच्छा है। वैसे सुबह रात को, वैसे रात के सोने से पहले भी सुबह बहुत अच्छा लगता है, आप जल्दी उठ जाओ, थोड़ा 15 मिनट आप बैठो। इसके बाद आपको क्या बताना है, फिर अल्फा में कैसे जाए ये बता दें। अल्फा अल्फा मेडिटेशन में बैठने के लिए आंखें बंद करके कमर गर्दन सीधा करके बैठना है। पहले ब्रीथ ले लो, 10 ब्रीथ, मतलब दीर्घ श्वास, लंबी गहरी श्वास। पूरा लेने के बाद पूरा अपने बॉडी को रिलैक्स करना है, सिर से पांव तक, टू तक। ये ना बॉडी को रिलैक्स करो, सिर का तनाव पूरा निकालना है, निकलता हुआ इमेजिन करना है आपको, पूरा सिर का तनाव निकलता हुआ इमेजिन करोगे। इसके बाद माथे में वो चिंता की रेखाएं बनी रहती है ना, सारा जाता हुआ देखो, पूरा चला गया है, माथा पूरी तरह शांत दिखती है, ऐसे इमेजिन करो। आईब्रो में इमेजिन करोगे उसका टेंशन सारा दूर हो गया है। आईलिड आईसो में ध्यान करोगे, वहां का टेंशन सारा, पूरा तनाव निकल गया है। फिर उसके बाद अपने गालों में ध्यान करोगे, वहां का सारा तनाव जाता हुआ इमेजिन करोगे। फिर मुंह पर ध्यान लगाओगे, जाह पर लगाओगे, दांतों पे लगाओगे। जब भी गुस्सा आता है तो जाह टाइट रखते हो, दांतों को भी टाइट बना के रखते हो। फिर वो इतना अच्छा, होंठों में हल्की सी मुस्कान आने दो, ढीला छोड़ दो, दांतों को ढीला छोड़ो, जाह को ढीला छोड़ो। आपका फेस देखो कितना अच्छा लग रहा है, होंठों में अच्छी मुस्कान आने दो। फिर आपका फेस बहुत शांत दिख रहा है, बहुत सुंदर दिखता हुआ इमेजिन करो। उसके बाद गले में ध्यान करो, गले में से सारा तनाव जाता हुआ देखना है। इसके बाद आपको लेफ्ट साइड शोल्डर में ध्यान करोगे, वो इतने साल से अपने कंधे में कितना बार उठा के लेके आए हो, तो सारा ऐसे
पानी में जैसे बहता हुआ सारा निकलता हुआ इमेजिन करो। आपका शोल्डर तो एकदम गंदा पूरा हल्का लग रहा है। अब एल्बो में ध्यान लगाओगे, हाथों में ध्यान लगाओगे, फिंगरों में ध्यान लगाओगे, हाथों को पूरा तनाव फिंगरों द्वारा बाहर निकलता हुआ इमेजिन करो। ऐसे ही आपको राइट साइड में देखना है। पहले कंधों पे, शोल्डर पे देखोगे, फिर हाथों में, एल्बो में देखोगे, हाथों में देखोगे, फिंगरों में देखोगे, सारा हाथों का तनाव फिंगरों द्वारा बाहर निकलता हुआ इमेजिन करोगे। आपका दोनों हाथ इतने हल्के लग रहे हैं, बहुत शांत दिख रही हैं। इसके बाद आपने अपने छाती में ध्यान करो। छाती का सारा टेंशन दूर हो गया है वहां से, मतलब जो भी नेगेटिविटी, गुस्सा हो या नफरत हो, सारा निकलता हुआ इमेजिन करोगे। वहां लव एंड अफेक्शन, प्यार से भरा हुआ इमेजिन करो। आपका छाती पूरी तरह शांत दिखती है। अब पेट में इमेजिन करो, पेट को याद करोगे, ध्यान करोगे, पेट में से सारा तनाव जाता जाता हुआ देखो। पेट पूरी तरह शांत हो रही है। ऐसे कमर में देखना है, कमर पूरी तरह शांत है। अब पैरों में ध्यान लगाओ। पहले जंघाओं में ध्यान लगाओगे, थाई में, थाई का सारा टेंशन दूर हो गया है, थाई पूरी तरह शांत है। फिर घुटनों में ध्यान लगाओगे, नीस में ध्यान लगाओगे, फिर पैरों में ध्यान लगाओगे, पाँव में ध्यान लगाओगे, फिंगरों में ध्यान लगाओगे। पूरा पैर का सारा तनाव फिंगरों द्वारा बाहर निकल गया है, ऐसे इमेजिन करो। ऐसे ही आपको राइट साइड पैर में देखना है। पहले जंघाओं पर ध्यान लगाओगे, वहां का तनाव जाता हुआ देखो, घुटनों में से, फिर पाँव में से, पूरा पैर, और पैर में से देखोगे, पाँव में देखोगे, फिंगरों में देखोगे, सारा पैरों का तनाव फिंगरों द्वारा बाहर निकल गया। आपका दोनों पैर बहुत शांत है, बहुत हल्के लग रहे हैं, ऐसे इमेजिन करो। जैसे पैरों में उंगलियां ही नहीं हो, इतना हल्का फील कर रहे हो। ये रिलैक्सेशन से आपका आधा बीमारी ठीक हो जाता है। नींद जिसको नहीं आती है उसको नींद आ जाता है। सिर दर्द हो, बॉडी पेन हो, सारा कुछ इसमें निकल सकता है। छोटी मोटी नहीं, रोज करने से बीमारी संभावना ही, बीमारी नहीं होने का बहुत संभावना है। बीमारी से दूर रह सकते हो। इसके बाद आपको मन को कंट्रोल करना चाहिए। एक दो बार श्वास लेगे, मन को शांत रखोगे। मन ऐसी चीज नहीं है, शांत जल्दी नहीं होगी। जैसे कोई तालाब में पत्थर फेंकते हो, वो रिंग जैसा आता जा रहेगा, उसका बेस बनता जाएगा, गोल 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 करके बहुत दूर तक जाता होगा, आपने देखा होगा। फिर ऐसे ही थॉट्स आपको आता रहेगा। आप ब्रीथ लोगे, थॉट्स को देखा करो, क्या कौन सी थॉट्स आ रही है। फिर आपका ब्रीथ जाएगा, थॉट्स भी थोड़ा, आपका ब्रीथ स्लो हो जाएगा, थॉट्स भी धीरे 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 एक टाइम में खत्म हो जाता है। वही अल्फा लेवल है। ये लेवल हमें प्रबंध के साथ कनेक्ट, सबकॉन्शियस माइंड ओपन हो जाता है, फिर हमें प्रबंध के साथ कनेक्ट कर देता है। अल्फा लेवल में आने के लिए बॉडी रिलैक्स होना चाहिए, माइंड में थॉट्स नहीं होना चाहिए, उसी में आप रिकॉर्ड कर सकते हो। ये इसमें कोई भी विजुअलाइज करोगे, यही अल्फा लेवल है। ये अर्ली मॉर्निंग में क्या बोलते हैं, प्रबंध ऐसा है ना, हर एक मनुष्य में कोई थॉट्स है, 60,000 थॉट्स के ऊपर ही आता है, इसलिए ट्रैफिक जाम जैसा हो जाता है। सो देखो, इतनी लोग कचमच, पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग, इतनी थॉट्स होते हैं, प्रबंध फ्री नहीं होता। फिर हम जैसे अर्ली मॉर्निंग में उठ के करते तो प्रबंध, इसीलिए हमें जो कुछ करना है तो ट्रैफिक क्लियर रहता है, आपका काम हो जाता है। देख लो, ये समझ लो, ये भी बहुत अच्छा है। मैं सुबह उठने का मेरे को ये इसलिए पसंद है, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, बहुत शांत वातावरण में जो कुछ भी बोलो, आप एनर्जेटिक हो गए, बहुत एनर्जी मिलेगा। आप ले लो या नहीं लो, तभी वो देता ही रहता है प्रपंच, एनर्जी बरसता ही रहता है। जैसे सूरज जैसे किरण बरसता है, धूप देता रहता है। आप लेना है ले लो, नहीं तो नहीं लेना। ऐसे ही कोई भी चीज, ग्रह नक्षत्र ऐसे कुछ भी हो, वो सिर्फ देता ही है। आपको समझ आएगा तो आप उनसे शक्ति ले सकते हैं, नहीं तो वो चुप रहने से तो आम बन जाते हैं। वो जो जिसको शक्ति लेते हैं उनको ज्यादा पावर मिल जाता है। हमेशा फुल्ली चार्जड रहना चाहिए। देखो, टीवी देखोगे या मतलब फोन देखते हो या कुछ भी नेगेटिविटी सुने, मतलब गप्पे लगाते हो, उसी से आपकी एनर्जी खर्च हो जाता है। बैटरी चार्ज लीक हो जाए, खत्म हो जाता है। फिर बैटरी को चार्ज करने तो आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। मेडिटेशन करने से फिर वापस आते, अपनी घर के पॉजिटिव वाइब्रेशन से पूरा पूरा भर के रखो। हमेशा पॉजिटिव रहने से क्या होता है, कई लोगों को अट्रैक्ट करता है ये।
कोई भी आएगा इधर आते उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, फिर उनको मन शांत मिलता है, वो प्रॉब्लम बताए बिना ही चला जाता है। इतना अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा मैं घर को पहले वो पॉजिटिविटी में लाना चाहती हूँ। कोई भी आके बोले तो मैं फिर पूजा करना, क्या दिए जलाना, थोड़ा श्लोक पढ़ना, अच्छे बात बोलने से ही घर का वाइब्रेशन को मेंटेन कर सकते हो। उस घर में कोई भी बैठ सकता है, आ सकता है। अब कोई भी आके बैठते हैं, वो जाने के बाद कुछ भी नहीं था, अपना ख्याल तो छोड़ के जाएगा, आप बैठोगे तो आपको मालूम हो जाएगा क्या छोड़ के गया है। फिर ये भी बहुत फर्क पड़ता है, ये मेडिटेशन आपको बहुत काम देता है। ये आप अल्फा लेवल में जरूर जाना है, आपको अल्फा में कुछ भी मांगो। ये भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है, आपने मुझे बोलने का मौका दिया कुछ भी। मेरे को बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है ना, फिर उनको एक बार मेरा कोई भी चीज गुम जाता है, रख लो, मिला मिला नहीं है, या कुछ भूल जाते हो रख के, अल्फा से पूछ लो। वो मेरे तक एक छोटी सी मुद्री अंगूठी पता ही नहीं लगा कहाँ गिर गई, मेरे को याद ही नहीं है। फिर मैं ढूंढती रही, देखती रही, फिर मिला नहीं है, पता नहीं घर में गिर गया या बाहर गिर गया, कुछ पता नहीं। 1 महीने 2 महीने के बाद फिर मैंने अल्फा से पूछा, तुम ढूंढ के दे दो, तेरा काम है। फिर एक दिन 1 महीने के बाद मैं कुछ वो तकिया वगैरह बिस्तर वगैरह जो यहाँ तय करके रखा था, उसको सीधा करने के लिए गई थी, देखा नीचे पड़ाते चमक रहा था। फिर देखो अल्फा ने कैसे ढूंढ के लेके आया। ये बहुत अद्भुत काम करता है। ऐसे मेरा अनुभव बहुत ज्यादा ऐसे मुझे मिला है। सबको अल्फा हेल्प करे, सबको मदद करेगा, अल्फा की मदद जरूर लेना, ये मैं बोल के खत्म करती हूँ अपने को। आपको जितना समझ आया पता नहीं, मैं यार कुछ पूछना है तो पूछ लो, मैं बताती हूँ। मेरे को समझ में जितना आता है उतना बता देती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया माइकली जी। आप ठीक बहुत मीठी सी। ठीक बोला है क्या? ठीक बात जरूर है? जरूर जरूर। इनफैक्ट अगर आप एक अल्फा मेडिटेशन में लिया, हम सबको बहुत अच्छा होगा। समझ अगर आया, हम वैसे समझ यहाँ आया। हाँ अगर अगर हम यहाँ एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया, हाँ। अगर आप डेमोन्स्ट्रेशन तो अच्छा होगा अल्फा हम्म। मेडिटेशन के लिए। 5 मिनट के लिए हमारा अच्छा होगा अभी। ओके ओके। आप नहीं, ये बेनिफिट तो बहुत है, अनगिनत है, क्योंकि प्रपंच देने को हमेशा तैयार रहता है, हमें जरूर लेने को जरूर। पता नहीं लगता क्या लेने, कब लेने के क्या लेने। फिर मैं तो, मेरे को एक एक सेकंड भी मेरे को बहुत कीमती है। मेरे को पता है इस टाइम में क्या करना है, उस टाइम में वही काम करूंगी। मैं 3 बजे को उठती हूँ, 3 to 4 योगा ओ, करती हूँ। योगा से ही शुरू किया मैंने, योगा 25 साल से कर रही हूँ। आप कौन सा टाइम सोते हैं रात में? रात को 9 बजे सो जाती हूँ। ओ, 9 बजे सो जाते हैं और 3 बजे? 3 बजे उठ जाती हूँ। बहुत खूब। और तीन अब आप ब्रह्म मुहूर्त में आप हाँ, ब्रह्म मुहूर्त, वो रास्ता क्लियर होता है ना प्रपंच का, उस टाइम में मैं जी। करती हूँ। योगा भी करूंगी, मेडिटेशन भी करूंगी, फिर थोड़ा स्नान वान करके, दिए जला के, थोड़ा सा प्रसाद चढ़ा के वाक पे निकल जाती हूँ। 5 बजे वाक पे निकलती हूँ, 6 बजे वापस आके जब माला जब करती हूँ, कुछ श्लोक लगाती हूँ या सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, फिर मैं अपना नाश्ता बनाना और खाना बनाने की सब्जी काटना तैयार करती हूँ, फिर मेरा क्लास शुरू हो जाता है। योगा क्लास आ जाएगा, 7-8 लोग करते हैं, सब बाहर से करते हैं, पुणे में से, बड़ौदे में से, फिर लखनऊ से, सुल्तानपुरी से, ऐसे कोई कहीं कहीं के करते हैं। इधर के लोग, अपार्टमेंट के लोगों को मैंने बोला, कोरोना आने से इधर का बंद हो गया, घर में करना बंद हो गया। ये घर में लोग आया करते थे, सो बड़े लोग दोबारा, क्या। अच्छा, सो दोबारा हाँ, दोबारा बता दीजिए, हाँ, हमको कैसे पता चलेगा कि हम अल्फा मेडिटेशन वाइब्रेशन में है? हाँ, हमेशा पॉजिटिव रखना है वाइब्रेशन, हमको कैसा बताना है कि ठीक है, लेकिन पॉजिटिव। आई थिंक अगर हम अल्फा मेडिटेशन में जाना है हाँ, तो क्या हमको कैसा पता चलेगा कि हम नहीं अल्फा नहीं, मेडिटेशन आप पूरा के बॉडी को, वाइब्रेशंस में है? अपने अपने पूरा बॉडी को रिलैक्स करो, हेड से टू तक हर एक पार्ट को ढीला छोड़ना है। ठीक है। फिर माइंड में थॉट्स ठीक नहीं है। आना, थॉट्स तो आएगा, ब्रीथ ले लो, छोड़ो, लोड़ो, और फिर थॉट्स भी कम हो जाएगा उसके अनुसार। आपका ब्रीथ बहुत कम स्लो हो जाएगा ना, उधर थॉट्स खत्म हो जाएगा। उस लेवल अल्फा लेवल है, वही अल्फा लेवल है वो। अर्ली मॉर्निंग है, सोने से सो के उठेगा उसी टाइम में
क्योंकि उस टाइम में बाहरी मन बात नहीं करेगा, ये उस समय शांत रहते हो, अल्फा लेवल ज्यादा हायर लेवल में रहता है। फिर ऐसे सो के उठ के आंखें नहीं खुली जी उस टाइम में आप कर सकते हो, वो अल्फा लेवल है, क्योंकि बाहर मन हाँ जी कुछ नहीं करेगा, उठ गए हो सब कुछ, फिर उस में थोड़ा 5-10 मिनट बैठो उस टाइम में, आपको जो कुछ पाना है उस टाइम में मांगा करो, उस टाइम में बोला करो, अच्छा है। ये अल्फा लेवल में सिंपल मेडिटेशन है, लेवल प्रैक्टिस करोगे तो अल्फा लेवल में इजीली पहुंच सकते हो। आपको कुछ चाहिए तो कुछ भी बोलो, फिर मेरे को ये चाहिए, पैसे चाहिए, कुछ भी मांग सकते हैं, गाड़ी गाड़ी चाहिए, फिर शोरूम में जा रहे हो, गाड़ी देख रहे हो, कलर, फिर गाड़ी का डोर ओपन करके देख रहे हो, स्टीयरिंग पकड़ते, इमेजिन करो, वो हैप्पीनेस लाओ पहले, वो विजुअलाइज गाड़ी करना खरीद, है जी हाँ, जी हैप्पीनेस लाना है, फिर वो सो तो दैट मीन्स अगले दिन गाड़ी आपकी है। पैसे के बारे में चिंता नहीं करो, वो प्रपंच रास्ता बना देता है, क्योंकि वो प्रपंच सब कुछ क्लियर कर देता है, वातावरण को आपके अनुसार, आपके जो मदद करने के लिए वो तैयार है ना, वो करता है। ये नहीं गाड़ी की नहीं है, एक लेडी ऐसे ही फ्रांस में, वो लेडी जा रही थी, वो विंडो शॉपिंग ऐसे देख रही थी, उसको एक हैंडबैग बहुत पसंद आया, पास में देखा था उसका उसके लेवल का नहीं है, वो हायर लेवल, ये तो बहुत महंगा है, ये मैं खरीद नहीं पाऊंगी सोचा, उसी टाइम में उसने बदल डाला, ये सोचकर मैं तो ये जरूर लेना है, मेरे को ये बहुत पसंद है, सबकॉन्शियस माइंड को रिकॉर्ड कर दिया, ये बैग मैं खरीद जैसे भी मेरे पास आएगा। फिर देखा इसका एंगेजमेंट हुआ था, उसका होने वाला पति उसी दिन शाम को उसको गिफ्ट दिया, देख उसको पता नहीं था, उसने खोल के देखा था सेम बैग, इतनी हैरान की बात है। ऐसे ये विंडो शॉपिंग करते करते एक औरत ने देखा, एक स्कर्ट देखी थी बाहर में, उसको बहुत पसंद आया, वो भी हायर लेट, ये तो मैं खरीद नहीं सकती, क्या करूं, रोज देखती जाती थी, एक दिन करी, उसको बहुत पसंद आया, वो सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो गया। फिर बाद में क्या हुआ, वो ऑफ प्राइस में उसको मिला, क्योंकि वो सेल में आ गया था, ओह सेल में आ गया था, ऑफ प्राइस में इसको मिल गया, इसने खरीद लिया। ऐसे कई अद्भुत बातें बहुत होती हैं, छोटे छोटे। आपको एक बात है, एक बुक सिफारिश करूंगी, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, बुक का नाम है, हाँ जी जोसेफ मर्फी ने मालूम लिखा है, ये पढ़ के देखो, जोसेफ मर्फी ठीक है जोसेफ मर्फी का बुक है, बहुत अच्छा लिखा है, ये नहीं उसे ये काम नहीं होगा ऐसी बात नहीं, मैं ऐसे बुक्स ज्यादा पढ़ती हूँ, सीक्रेट, मैजिक, फिर ये सबकॉन्शियस माइंड, पावर ऑफ लव, ऐसे बहुत खूब पॉजिटिव थिंकिंग बुक पढ़ती हूँ, ये बुक बहुत बहुत पढ़ना मेरे को अच्छा लगता है। बहुत खूब मैथिली जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका आई थिंक जो आप बताया वो ये ज्ञान बहुत इट्स वेरी डीप एंड थिंक हाँ जरूर हम सब ये अल्फा मेडिटेशन के बाद सुना है पहला बट जो आप एक्सप्लेन किया है बहुत मीठी सी बहुत अच्छा था if anybody else has any questions please do ask basically what she said was in case you didn't understand was that she recommends that we wake up early in the morning she goes to sleep Maithili ji goes to sleep at 9 o'clock at night and wakes up at 3 in the morning which is a wonderful practice because she really wakes up just before the Brahma Muhurtam and she does her practices at that time the vibrations are very calm and conducive for this kind of deep meditation and how you know you're in alpha meditation is first you relax your body completely and as we all know, body and mind are connected. So the mind also starts relaxing. And the idea is to keep it thought free. And when you're in that state and you relax every part of the body, like in Shavasana, part by part, you will then notice that you'll go into a deep state of meditation, which is very healing. And that really is what the essence of what she's saying is. And she also says at that time in the morning, especially, you would have experienced that semi conscious state, just before you go to sleep and just after you wake up when you haven't yet opened your eyes and just before you go to sleep and after you've closed your eyes as well these are the self hypnosis stages which is very powerful you can actually ask for things you can even speak to your loved ones who have passed on in fact when you go to sleep and get answers in the morning you can even ask for even any material things that you want so as per your prarabdha karma depending on that the speed of actually receiving those wishes will be indicated. But she was speaking about
experiences where one lady had looked for some item like a bag and so on, some special expensive clothes, and they got it. And you can also use a very powerful tool of the attitude of gratitude. And if you are grateful, if you can visualize, suppose you want something, I want a car, for example, or a house, and I visualize say sitting in that car, holding the steering wheel, the color of the car, the texture of the seats. I make it very involving in a sensory manner, and I also experience gratitude for it even before it comes. That is how we invite wonderful things into our life, and especially when it's done through alpha meditation, it becomes very powerful. That is the gist of what Maitri ji was saying. So if you have any questions, please do ask now. Hari Om, I'm Rashmi from Bangalore. I have a question. Okay. हाँ जी. इस अल्फा मेडिटेशन को सोते वक्त करना, पोस्चर पूछ रही हूँ मैं, बैठ के करना है या सोते करना है, कौन सा इफेक्टिव है? लेट के नहीं करना, बैठ के करना है। लेटने से सो जाओगे। हाँ, अच्छा। बैठ के करना है। फिर एक बात मैं भूल गई थी, ये पहले अपनी फैमिली को फुलफिल करना है, तभी अल्फा मेडिटेशन काम देता है। इसके बाद में आपको स्पिरिचुअल की ओर खुद ही लेके जाएगा वो। जब फैमिली का सारा हो जाता है तो आपको सब में से डिटैच करके वो खुद ऊपर लेके जाता है। उसमें चक्रास वगैरह इन्वॉल्व होते हैं। इधर से आपको शिव के साथ ज्यादा कनेक्ट हो सकते हो। फिर वो बहुत अद्भुत है। पहले फुलफिल करो, बच्चों को जो कुछ करना है, घर का पूरा अच्छी तरह करना है। देखो पेट में भूख लगी हो तो आप मेडिटेशन नहीं कर पाओगे। पहले भूख मिटाना है, पहले घर को चाहिए, पैसे चाहिए, काम चाहिए, सब कुछ अपना ड्यूटी पूरा करना है। ये सारा अल्फा से करके फिर स्पिरिचुअल की ओर अपने आप निकल जाओ। पहले बरसा हुआ देखो, अपने आप ही चले जाओगे स्पिरिचुअल की ओर। वो लेके जाएगा, खुद ही लेके जाएगा। सो हमारा गृहस्थ, आप क्या कह रहा है कि हमारा गृहस्थ धर्म हम पूरा करना है इस अल्फा मेडिटेशन, ये अल्फा मेडिटेशन हमको मदद करेगा। उसके बाद अपने आप वो हमको हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ में ले जाएगा। ये पहले देखो बच्चों को करना है, या घर में कोई वाइफ की कोई जरूरत होता है, मकान लेना है, गाड़ी लेना है, हर जरूरतें पूरी कर लो। अपना फुलफिल करने के बाद सब में से डिटैच होके वो अपने आप ही लेके जाएगा। मेडिटेशन खुद उसको पता है कैसे लेके जाना है। फिर मैं सबके साथ रहते हुए भी मैं किसी के साथ नहीं हूँ सबके साथ प्यार करती हूँ, सबको भलाई करती हूँ, कुछ करती, मैं फिर किसी के साथ नहीं हूँ। मैं मेरा अल्फा के साथ हमेशा जुड़ी रहती हूँ, हमेशा अल्फा के साथ। अल्फा मेरा फ्रेंड की तरह है, मतलब कोई भी काम करवा लो उसे, जी बुम्बा की तरह वो काम करता है, अपना नौकर की तरह काम करता है। वो उसको ये नहीं पता ये अच्छा काम है नहीं करना, ये बुरा, अच्छा काम करना है, बुरा काम नहीं करना। अल्फा सबकॉन्शियस माइंड को ये मालूम नहीं है, ये याद रखना। बाहर मन जो बोलता है, अच्छा बोलेगा बुरा बोलेगा वो करके दे देगा, बुरा बोलेगा तो बुरा भी कर देगा, अच्छा बोलोगे अच्छा भी कर देगा। इसलिए उसको मालूम नहीं पड़ता ये अच्छा बोल रहा है, ये अच्छा करना है, ये करना है, नहीं ये अच्छा नहीं है, ये नहीं करना। उसको वो डिफरेंट नहीं देता, जो बोलते हो तो वो कर देगा। उसके लिए एक उदाहरण बताते हैं। एक वो शिप चलाते हैं, शिप में जो कई अंदर काम करने वाले होते हैं, नाव जैसा चलाने वाले लोग अंदर के होते हैं, नीचे तो कैप्टन तो ऊपर होता है। वो जो ऑर्डर देगा वो लोग करेंगे, वो उसको फॉलो करेंगे। वो गलत ऑर्डर दे तभी उनको करना है, उनको वो देखते नहीं है ना, वो अंदर बैठे रहते हैं। गलत हो सही हो उनको पालन करना है। ऐसे ही सबका डिपार्टमेंट का काम है। फिर वो सही करेगा या तो गलत बोलेगा तो कहीं रात में जाके टक्कर हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। इसलिए उनका सबकॉन्शियस का काम यही नहीं है। अच्छा भी अच्छा बोलोगे, इसलिए आपको सावधान से रहना है। क्या बोल रही हो, आपका बोली में बहुत ताकत है। आपका थॉट्स, हर एक थॉट्स में हर एक पावर है। कोई भी थॉट्स इतना पावरफुल है, आज की थॉट्स कल की जिंदगी है। ये आपको कल का आपने इमेजिन नहीं करने का। आज आप कैसा बीत रहे हो, कैसे सोच रही हो, आपके विचार, आपके थॉट्स इतना, तो कल ऑटोमेटिकली लाइफ में वही मिलेगा और भी अच्छा रहोगे। ये सोचना है। नेगेटिविटी में जाओगे तो कई बीमारियां मन से ही पैदा होती है। कोई भी बीमारी आती है, सिर दर्द दुखता है या कुछ भी, आपको कोई भी कैंसर तक भी हो, मन ठीक नहीं होने से सारा आ जाता है। सब में ब्लॉकेज आ जाता है, नर्व्स में आ जाता है,
मतलब चक्रास में आ जाता है, सारे ब्लैक एज आने से आप बीमार पड़ जाते हो। फिर उसी में से उठ के आ सकते हो, विल पावर होने से, वो भी अल्फा की माइंड मदद से ही आप बाहर आ सकते हैं। कोई इतना समझता नहीं है। पहली बात, उनको दर्द हो रहा है ना, बार बार बोलते हैं मेरे को दर्द हो रही है, मेरे को दर्द, मेरे को ऐसा हो रहा, वो मत बोलना, बोलना ही नहीं चाहिए। तो उसको इग्नोर करो। इग्नोर करने से क्या होता है, वो टिकता नहीं है, वो चला जाए। आप प्यार करोगे, दर्द रहेगा, रहेगा, जरूर रहेगा, तो जाएगा नहीं। कितनी मेडिसिन खाओ, कुछ भी करो, तो वो जाता नहीं है। माइंड से हम उसको हटाओगे, वो दूर चला जाता है। ये याद रखना, कोई बीमारी ऐसी नहीं है नहीं जाने का। बॉडी की क्षमता है अपने आप ठीक होने का। कोई भी चोट लगता है, वो चोट अपने आप ही भर जाता है। ये भी वो बॉडी को पता है क्या करना है। इसलिए आपको ध्यान से रहना, हमेशा पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, प्यार से रहो, लव एंड अफेक्शन, ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड बहुत कुछ ला के देता है। ये भी, ये चीजें बहुत अच्छी है ना। और कई बातें हैं, बोलने के लिए जाऊं तो फिर हर एक चक्रा के बारे में घुसोगे तो बहुत टाइम लगेगा। हर चक्रा भी कितना अच्छा काम करता है, बहुत सारा है इसमें। फिर प्रपंच के साथ आप कैसे कनेक्ट होते हो, ये बहुत अद्भुत बात है ये। चलो, मेरे को जितना आता है मैंने बोल दिया तो ठीक है, ठीक बोली हूँ क्या मैं, आप बताओ। आप तो बहुत बहुत अच्छे शुक्रिया बोल रहे हैं। जी सर, बिल्कुल I have a question. हाँ, प्लीज Yeah, madam, is there any book that you can recommend for the chakras, chakra healings, or to know more about चक्रा के लिए chakras? कुछ वो चक्रास के लिए है, चक्रा के बुक है। फिर वो मैं वो पढ़ती रहती हूँ, क्योंकि किसी ने कोई पता नहीं बाहर की लेडी ने लिखा या इंडियन लेडी लिखा है, मेरे पास बुक है। एक सेकंड में बुक दे के आती हूँ। ठीक है Sir, in the meantime, हाँ जी so can we get this recording? I mean, she's really spoken so well and enlightened us about alpha Yes, ma'am. meditation. It is So recorded can and we we, will upload it on yeah, YouTube. yeah, because at least we can share it with our family members and they यस also understand the importance इट of it. ये इट इज देखो, ये अवेलेबल ऑन चक्रा यूट्यूब मेडिटेशन है, शारदा नंदा ने लिखा है, स्वामी शारदा नंदा। बहुत बढ़िया हाँ बुक है हाँ ये ना। हम तो 7 चक्रास को, 720 चक्रास है, उसमें नहीं जाते। हमें मेन चक्रास 7 है, फिर हमने 9 रखा है। 9 चक्रास को हम एक्टिवेट करते हैं, उसमें ब्लॉकेज निकालते हैं, उसको तंदुरुस्त रखते हैं, चमका देते हैं, वॉट एवर। फिर अपने आरा को भी रखना पड़ता है। आरा तो बहुत बढ़िया काम करता है। आरा ऐसे आता है आपको, आपकी बीमारी आने से, आपकी तबीयत में आने से पहले आरा थोड़ा सा वीक हो, आरा में घुस जाता है, फिर बॉडी में आ जाता है। ये भी बोलते हैं एथरिक बॉडी में पहले 6 महीने पहले एंटर कर देता है, फिर हाँ जी फिजिकल बॉडी में फिर आता है। वो ठीक में पहले एथरिक बॉडी में ठीक होता है, फिर फिजिकल बॉडी में ठीक होता है। ये ऐसे कई बातें हैं। चक्र तो बहुत बढ़िया अद्भुत का काम है, पूरा वो सहस्त्र वो चक्र। बुक दिखाइए मैडम, इस तरफ थोड़ा। हाँ हाँ जी देख लो, हाँ शारदा स्वामी नंदा शारदा हाँ चक्र स्वामी मेडिटेशन। शारदानंद चक्रा मेडिटेशन ये बुक बहुत अच्छा लगता है ऐसे बुक लेके पढ़ा करो, बहुत अच्छा है ये। शुक्रिया क्रिएटिविटी क्रिएशन के बारे में भी बुक है, मैंने किसी को दिया हुआ है वो। फिर ऐसे छोड़, ये बुक बहुत पढ़ती हूँ मैं। मेरे को टीवी देखना ज्यादा नहीं, फोन में 100 मैसेज आया होगा, वो मेरे पास टाइम नहीं है। ज्यादा बुक ही पढ़ती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। फिर सबको पॉजिटिव लेना है, मेरे मेरा नाम ही इधर पॉजिटिव आंटी है, और कुछ नहीं। मेरे पास नेगेटिव लोग नहीं आएंगे नहीं आएंगे नेगेटिव बोलने वाले, क्योंकि उनसे रहा आप बहुत एंटर भी नहीं करेंगे। अरे नहीं नहीं, मैं जाना जाना है, हाँ मैं कह रहा, चलो जी चलो जाओ मेरे को पता है ना। वो कहती है जो मेडिटेशन करने आता है उनको सिर फट जाता है, 2 मिनट भी बैठ नहीं सकते मेडिटेशन पे। चलो मेरे को पता लग जाएगा, चलो वो नहीं कर पाएंगी करके। क्यों, ये जो ये भी पिछले जन्म का संबंध भी होता है। पिछले जन्म में जो आधा अधूरा छोड़ दिया, वो इस जन्म में कंप्लीट करोगे, ये बात है। ये बहुत कम लोगों को समझ आता है। ऐसी वो ऐसे पढ़ो देखो, पता नहीं 1000 आता है यूट्यूब में। मेरे को पढ़ के गुस्सा ही आता है कभी, किसी टाइम में किसी में मेरे को पेशेंस चला जाता है। मैं इतना सुन नहीं सकती, कोई कोई मेरे को पॉइंट अच्छा भी लगता है, मैं सब में से कलेक्ट करती हूँ ये नहीं इसका बात अच्छा है तो उसको ले लिया, इसका बात अच्छा है तो उसी में से वो ले लिया। फिर मैंने एक वेदात्री महर्षि करके एक महान थे,
उन्होंने बहुत सिस्टम बना, उनका बहुत अच्छा था। मतलब 5 एलिमेंट्स के बारे में, फिर नवग्रहों के बारे में, इतना अच्छा। अब वो तो जाएगा, बहुत बड़ा समुद्र है। मैं कहती ये कोई कोई बात अच्छा लगता है तो उसके बारे में मैं पढ़ती हूँ। ये बुक पढ़ने, वो क्या आपको बॉडी के साथ क्या रिएक्ट करता है, नवग्रह क्या रिएक्ट करता है, फिर 5 एलिमेंट्स क्या रिएक्ट करता है आपके बॉडी के साथ। 5 एलिमेंट्स तो बाहर रहे तो फिर बॉडी में भी वही है। 72% पानी है तो हमारे बॉडी में भी वही है। वो बहुत कुछ है ये। मेडिटेशन तो बहुत अद्भुत चीज है यार, बहुत अच्छा है। आपको शांति पाना है, फिर जरूर मेडिटेशन करो। देखो वो मेडिटेशन में से एनर्जी मिलता है, ये भी पहली बात एनर्जी है। बहुत एनर्जी मिलेगा। देखो सो के उठने से एनर्जी मिलता है, खाना खाने से एनर्जी मिलता है, आंखें बंद करने से एनर्जी सेव होता है, मौन रहने से एनर्जी गेन होता है। फिर इतना फायदा है। अब एक दिन में आधा घंटा मौन रहने का प्रैक्टिस कर सकती हो। फिर ज्यादा ये टीवी फोन मेरा मत पढ़ देखा करो। फिर न्यूज भी नेगेटिविटी आता है, न्यूज सुनोगे तो मन खराब हो जाता है। मन को मत लगाना, देखो पहचान लो, फिर उसी टाइम में आप छोड़ दो उसको। नेगेटिविटी को हटाना है तो आपको छोड़ना पड़ेगा, ये अच्छी चीज नहीं। उसको प्रेयर करके छोड़ दो, वो अच्छे हो जाए। ये इसलिए हमें ऐसे करना। कोई एम्बुलेंस को देखते हुए मन चंचल होता है, फिर उसको बोला वो ठीक हो जाए करके उसको उसी टाइम में हटा दो, मन से हटाना है। ये ऐसे चाहे पॉजिटिव रहना थोड़ा मुश्किल है, फिर प्रैक्टिस में लाओगे तो हो जाएगा। और कुछ पूछेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया मैथिली जी। Is चल there any more questions that you have? No, probably we can get one more session on chakra done by ma'am whenever next she's free. ओके, हाँ एक बार करेंगे और करेंगे। ठीक है, पूरा चक्रा का बताती हूँ। अच्छा, बहुत सुंदर है। Actually, I think अगर आप just a moment. Yeah, I'm just putting in the link. I think Swati can guide you if you want to identify the link to हाँ YouTube for this recording. ओके It is there. Now, I think अगर आप हम सबको एक you know एक अल्फा मेडिटेशन में आई थिंक गाइड किया है तो अच्छा होगा। Maybe not this time, आप ट्राई but करके sometime. पहले ट्राई कर लो, थोड़ा थोड़ा ट्राई कर लो, जी, बैठ के हम सब। एक्सपीरियंस किया है। हम हाँ, एक्सपीरियंस किया है, बहुत अच्छा है जो आप आई थिंक जो आप हमको बताया, हमें एक्सपीरियंस किया है। ये बहुत इट्स अमेजिंग। एक्चुअली द इफेक्ट इज अमेजिंग, बहुत अच्छा है। हाँ So if anybody else has any more questions, please do ask now. Otherwise, we have come to the end. How do we get a notification? Well, Rashmi ji, you can speak to Swati. She will add you to the group, School of Ancient Wisdom WhatsApp group. That's where you'll get the notifications for all the satsangs. Regarding the YouTube link, you can contact her directly by WhatsApp, and then she will guide you how to get it. So मुझे does तो anybody else have any more? इतना फायदा मिला है, सबको मिले। ये जो मैंने पाया है ना, वो सबको मिलना चाहिए। मैं यही पसंद करती हूँ, सबको आ जाए, सबको तरक्की हो जाए, सब अच्छे रहे, हैप्पी रहे। ये ना हैप्पीनेस तो आपको बाहर से नहीं मिलेगी, अंदर से ही मिलेगी। अपने अंदर ही ढूंढो हैप्पीनेस को, बाहर से नहीं। गाड़ी आएगा, मकान आएगा, वो थोड़ी देर के लिए खुशी मिलेगी, वो उसी टाइम में चला जाता है। ये अंदर से खुशी लाओ। ये ना किसी को हेल्प करने से ज्यादा खुशी मिलता है, किसी को कुछ देने से ज्यादा खुशी मिलता है, वो खुशी टिकता है। ये फॉलो करो तो अपने आप ही हो जाएगा। मेरे को बहुत अच्छा लगा, आपने मौका दिया तो वो और भी बढ़िया है। मुझे बहुत पसंद आया। मैं पहले सोच रही थी 10 मिनट भी मैं बात नहीं कर पाऊंगी, क्या करूंगी, अब 1 आवर तो निकल ही गया। But बहुत शुक्रिया मैथिली जी. ओके So we've now come to the end of our satsang. We've now come to the end of our satsang, and you can get this recording on YouTube. Swati will guide you on how to get there. ओके So मैथिली जी, बहुत बहुत शुक्रिया. आप बहुत सर, थैंक यू सर। आपकी बात और आपके ज्ञान बहुत मीठी है. क्षमा कीजिए, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ लेकिन भी आई नहीं थिंक है, मेरे को इतना वो नहीं है। बोलो, ये नहीं कुछ जी, लेना नहीं देना नहीं, मेरे को कोई किसी से कोई मतलब नहीं, सब मेरे बच्चे हैं। मैंने ऐसे लेकिन आपकी बात में सच और प्यार भी है, भगवान का प्यार। वो सब वो हमको
देख, I mean, we are able to see it. I'm Oh, able to see it. oh, And आप वो simplicity में thank you. सच का बात है, ज्यादा है. और that humane love, वो भगवान का प्यार होता है ना, वो आपके आवाज में है. सो बहुत बहुत शुक्रिया. और वो भी आप जरूर एक पुराना आत्मा है. और आप you have gone through many lives. It is very obvious through practice. Your speaking, you have shared your wisdom to us through your practice. So वो बहुत अच्छा है. And we would love to have another session with you. Maybe a workshop, a more experiential session where we can experience that alpha and other techniques of meditation that you might practice. Oh. ये पहला Yeah. एक्सपीरियंस है मेरा. मेरे को इतना आता नहीं है, फिर भी पता नहीं कैसा बना था, अच्छा. ये नहीं मालूम था. ठीक है, जो अभी आगे आगे हमको भी आपका हम्म, जी हमको भी आपका एक्सपीरियंस में एक बार अगर लिया तो अच्छा होगा दोबारा. हम्म. So I think अभी तो हम we have come to the end of this satsang. So once again, thank you so much on behalf of the School of Ancient थैंक यू, Wisdom. थैंक यू. बहुत बहुत शुक्रिया ओके, मैथिली जी. सबके लिए थैंक यू, थैंक यू सर. ओके, बहुत God bless धन्यवाद you. मैडम, थैंक यू. ओके, थैंक यू. सबके लिए थैंक्स यार. So I think let's do the Loka Samasta. Please sit straight with your back, neck, and head aligned. Think of your loved ones. Think of people in your community. Remember their names and what prayer you want to send them. Let's send it as a collective. Also, let us send prayers of love and harmony to the world at large. Let there be wisdom. Let there be peace. Let people stop the wars and start moving towards a Vasudhaiva Kutumbakam. Sit straight with the back, So neck, and just head a second. aligned. So just a second. Ah, So people who would like to join our WhatsApp community, please drop your phone numbers on the chat box so that I can add them to our WhatsApp groups and to get updated for the further programs. Sure, we'll come up with chakra meditation with Maithili ji once again whenever she is available. Thank you so much. And please do share with your friends as well. ओके, किसी को And डाउट soon हो गया after, yes. If you have Doubt any हो गया doubts, you can comment it on our YouTube channel also. We will address to your questions. And we will also give a connect of Maithili ji so that you can contact her. किसी को भी डाउट हो तो कुछ पूछ सकते हैं, आराम से बात कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं. कोई भी प्रॉब्लम हो अब पूछ लो. मैं सारा दिन वही करती रहती हूँ. ये कह रहे हैं काउंसलिंग करेगी तो बाहर जाके वो बहुत बड़ा साइकियाट्रिस्ट, एमए साइकियाट्रिस्ट पढ़ के करना है. मैं That's so sweet, madam. बैठे बहुत करती अच्छा है. And soon after so this I'm session, sorry. within 1 hour, we will be uploading the video to the YouTube. टाइम का पता ही नहीं चला. अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा मुझे. Thanक you, ma'am. थैंक यू, So, थैंक सबके लिए. Swati, you will be sending the YouTube link to individuals who specifically ask for it, right? No, sir, I'll be posting it in the groups. And soon after the session, within 1 hour, once it gets converted, we'll be uploading it on the YouTube. Okay. So for those who had the question, I Or think they Swati can would have check in answered the you. morning also. Okay. I think that is quite clear. Okay. So please sit straight with your back, neck, and head aligned. Take a nice deep breath. Remember your loved ones and send them the prayers. Take a nice deep breath and let go. Observe the silence within, which is the language of the soul that connects all of us. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Om Tat Sat. Brahmarpanamastu. Thank you everyone. बहुत बहुत शुक्रिया मैथिली जी.
सबके लिए एक बार और थैंक्स बोलती हूँ, थैंक यू सबके लिए, थैंक यू। ओके, So same time. Thank you, ma'am, so much. बहुत अच्छा लगा यार, कितनी बार भी ये मैं इसी माइंड में